Acha ji, so today we are doing a not A level, sorry, IGCSE chemistry paper 6, May June 2023. All right, so this is the paper 6, which is alternate to practical first variant, and we're going for 2023. So, yeah, so the first question of this paper is ethanol can be made by fermentation of sugars found in plants. A byproduct of fermentation is carbon dioxide gas. A student made some ethanol using the following method: cut up some sugarcane and crush it, add hot water to the sugarcane, and stir to dissolve the sugar in the sugarcane. Remove the solids from the mixture and obtain sugar solution. Let the sugar solution cool and then add yeast. Place the mixture obtained in the apparatus shown in figure 1.1. Leave apparatus until fermentation is occupied. Then this is lime water. Okay. Name the apparatus labeled Y in figure 1.1. So in figure 1.1, the Conical apparatus that is Conical listed, flask. very good, conical flask. Explain why hot water rather than cold water is used in step 2. Step 2 may why do we use hot water and not cold water, beta? Basically because the higher the temperature, greater the rate of solubility, reaction. right? Not rate of reaction. We don't want a rate of reaction over here because reaction is not taking place. Sugar is just dissolving in water. Sugar dissolving in water is not called a reaction. It's called rate of dissolution or dissolving. All right. So, and greater the sugar can be dissolved, right? The hotter the water, the more sugar that can dissolve it. So more sugar dissolves in water quickly. Right. Next, name the method used to remove solids from mixture in step 3 and draw diagram to show how this is done. Out of Filtration. liquids, very good. If you want to Yeah. remove solids, the process is called filtration. And the apparatus you want to draw is a filter paper, which is a And basically funnel. funnel, right? Yeah. Then on top of Funnel के that, ऊपर filter paper. you need the filter paper, and then you need to label that you've drawn a funnel and you've drawn a Do we need like a conical flask या कुछ filter draw paper. करना है? No, I Why? don't think Nahin, so. you don't need to draw the conical flask over here. You just want to show that which method you want to use and you want to show how this is done. So basically, you put a filter paper on a funnel and then filtration takes place. Conical flask is not Alright. part of filtration. State why the sugar solution is allowed to cool before yeast is added in step 4. Because yeast is a living organism, right? And it works at room temperature. Otherwise, its enzymes get denatured तो Enzymes can biology आ denature. जाती है Yeah. जी. तो आप इसमें यही लिखोगे कि um, Enzymes of Yeast enzymes of can yeast get denatured. denature is at a high temperatures. microorganism whose enzymes work at room temperature. Hence, it might get killed at higher temperature. Might get killed in hot water. Cool. Next question. Describe how the appearance of lime water changes as fermentation takes place. Milky. When- Milky, Why? yeah, cloudy, yeah. because carbon Because of dioxide carbon is dioxide. Carbon produced, dioxide, so because carbon dioxide is produced, lime water will turn milky, right? milky. So you want to say describe the appearance, how it is changing. So it is changing from colorless to milky, right? From colorless, or you want to call it transparent solution to Milky white. milky slash
cloudy solution. Describe how the student could tell that fermentation is complete. How could the student tell that a fermentation is completed? No more bubbles. Very good. When the bubbles of CO2 stop forming in lime water, when no more bubbles of CO2 form in lime water. First up, name the process used to separate ethanol from mixture obtained by fermentation. So, because the ethanol obtained is going to Is be this gonna be with, fractional yes, Fractional distillation. distillation? the ethanol, Right. bilkul, the ethanol formed. Why is it fractional distillation? Because the ethanol formed is What? Is a hydrocarbon? no. It's Why volatile why do we want to use fractional because distillation over here is because the Different boiling different points? boiling point. Yeah. ethanol and Ethanol and Sugar. Yeast. glucose, uh, yeast, lime water. I mean CO2. the CO2. I nahi, don't. not even I, CO2 beta, whatever I is think we left in should. the conical flask, it's water, it's a solution. Oh, Oh. तो Oh आपने yeah, that डाला था makes ना, sense. तो what is left in the conical flask? कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आ गया, शुगर सारा खत्म हो गया फर्मेंटेशन की वजह से, पानी. ठीक है, सॉलिड लम्प्स सारे हट चुके थे, ठीक है, तो बचा गया, तो ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज द सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन वाज मेड विद हु, मेड विद वाटर, Pani. so water and ethanol बचता है conical flask में, and that you have to fractionally distillate, ठीक है, so the process is called fractional distillation. First one, ठीक है. Question number 2. A student investigates the reaction between aqueous ammonia and two different aqueous solutions of copper to sulfate labeled A and B. Solutions A and B have different concentrations. The student does two experiments. Experiment 1. Fill a burette with solution A. Run some solution A out of the burette so that the level of solution A is on the burette scale, and record the initial burette reading. Okay, use a measuring cylinder to pour 25 centimeter cube of aqueous ammonia into a conical flask. Usually when you read experiments that are this long, you usually forget what was written in the first bullet point, so don't bother reading at the start, just look at the first questions and then start going backwards. Start going back to the questions later. Like for example, the first question is okay, final burette reading and initial burette readings have to be filled up for solution A and B. So let's go have a look at solution A or experiment 1 basically. ठीक है? So the first one in this, the first burette reading is 18.3. It's not 19.7, it is 18.3. Reading is not read this way, reading is read downwards. Okay, so it is 17, 18.1, 18.2, 18.3. ठीक है, so the value is 18.3 of final reading of A. So 18.3, ठीक है, and initial reading is 0.6. Okay, the initial reading Wait, so we're is gonna take the reading ऊपर से? always ऊपर से. Oh. Burette readings are all Oh. taken from top to bottom beta. ठीक है, तो like this That's value is not not 19.7. 1. This value is actually 17.9. Okay, this value, because Okay. 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, and then 18. Okay, so ये बात you guys should try and remember. Anyway, so this is 18.3 and this one is 0.6. Okay, next we have experiment 2. Experiment 2, the initial reading is 9.2 20. and the reading Oh, is yeah. exactly 21. okay. So
21.0 and 9.2, right? Now subtract the values 18.3 and 0.6 to you understand the volume used. So what is 18.3 minus 17.0.6? So 17.7. would be 17 point something. And what is 21.0 minus 9.2? It should be 11.468. 8. 11.8. All right. So these should be the answers. Next question. Explain why a white tile is used during the titration. Okay, so a very good question. They must Oh, have so that we can actually see the Color reaction that takes change. place, Yeah. the color, yeah, the color change when we add in the क्या है उसका नाम, the indicator, okay, good. सही है. So you should know where the white tile is added. So where is the white tile used? right under the The thing, thing like Yeah. the measuring cylinder, right under the measuring yeah, cylinder. measuring cylinder. The conical flask, not the measuring Plus, cylinder. yeah. Oh, stand the conical flask on the white tile. Yeah, conical flask. Yeah, you put the conical flask like this, okay, on the white tile. Why do you put it on the white tile? Because as Mariam said, you want to check out the color change, because white color पे सब चीजें बहुत clearly visible होती हैं. So whatever happens in this conical flask will be observed clearly. So whatever is being analyzed, there are two things in a titration reaction, right? One thing is put in the burette, and the other thing is always put in the conical flask. So you have to remember that the second thing is always put in the conical flask, right? And whatever's put in the conical flask is called the analyte. Whatever's put in the titrate, this burette is called the titrant, all right? So the analyte which is in the conical flask is always placed on top of a white tile, because the color change occurs inside the analyte because of the indicator. Okay, so that color change is clearly visible. You want to say color change of indicator, that is also fine. Can we use the word analyte? But the indicator changes the color, not the analyte. No, I mean, Analyte is can we the like say in order to clearly observe the change in the Of indicator indicator in the inside the analyte? analyte. जी बिल्कुल, you can show that color change of indicator is clearly visible. Full stop. Next question. In experiment 2, the burette and the conical flask are both rinsed with water. The burette is then rinsed with solution B. State why both the burette and conical flask are rinsed with water. So why are So both? that there's wash no away like any random impurities. ions, yeah, Yeah, impure ions that what are the? are that are from experiment 1. So no Yes, solution A is in the thing. yes, because basically in experiment 1 we use the same burette and same conical flask. Okay, so it must contain solution A. Now we are going to, in fact, there would be no indicator, by the way. This is a redox reaction. Have they added any indicator? I don't think they've added any indicator. So writing about the indicator is actually wrong in the previous question. We will discuss that one second. For now, let's see, because they first added solution A, which must be of different concentration than solution B. So you want to wash the burette and the conical flask with water. So you will say, so that you have to remove any residues of solution A. Solution, ठीक है. Over here there is no indicator. Someone asks you, why is there no indicator?
Because you told that it's a redox reaction and it's not a क्या कहते हैं इन्होंने इंडिकेटर डाला ही नहीं तो क्यों नहीं डाला, यही तो पूछ रहा हूँ, टाइट्रेशन नहीं के We're बगैर। supposed to already checking the concentration. या सो Wait, इन maybe एसिड बेस they टाइट्रेशन, already knew how much they have to add. नहीं, ये भी टाइट्रेशन का सेकंड पार्ट है रीड द Oh, क्वेश्चन। wait. Slowly add solution because, like, while swirling the flask until the mixture in the conical flask starts to become cloudy. So the reaction is for like the cloudiness. So we can observe that. Like, you reaction just have to between keep adding it until it's oxygen cloudy. and two different oxygen. बेसिकली Oh, because एक बात सुन ले बेटा, कॉमन yeah, सेंस इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड अ लॉट, ठीक है, और कॉमन सेंस होना चाहिए, इट शुडंट बी मतलब समथिंग, बस मतलब कुछ भी। तो देखें, टाइट्रेशन इज ऑलवेज डन टू फाइंड आउट कैलकुलेशन, तो यू कांट से कि यहाँ पे कैलकुलेशन फाइंड कर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी थी, इस वजह से टाइट्रेशन की टाइट्रेशन करते हैं हमेशा कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए, नंबर वन, ठीक है। नंबर टू, इंडिकेटर डालने का मकसद ये होता है कि एक क्लियर कलर चेंज विजिबल हो। एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर इंडिकेटर इससे डाला जाता है बिकॉज नाइदर एसिड नॉर बेसिस आर कलर्ड, और जब वो आपस में रिएक्शन करते हैं तो नो प्रोडक्ट फॉर्म्स विच इज ऑल्सो कलर्ड, तो अनफॉर्चुनेटली वहां पे आपको डालना पड़ता है। जब आप रीडॉक्स रिएक्शन करते हैं तो क्योंकि उसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स अक्सर मौजूद होते हैं, वो ही I अपना was कलर gonna say that because never they're the only one say with that colors. I was gonna say that ever again as well, ठीक है, never ever say कि I was gonna say that, why didn't you, ठीक है, तो एग्जाम में लिख के आए, आपको पता हो पर आप एग्जाम में नहीं लिख के आए तो नंबर नहीं मिलेंगे, ऑलवेज ट्राई से द राइट आंसर, ठीक है, एंड इन द गिवन लाइंस एज वेल, इफ यू से I was gonna say that, well I gave you enough time but everyone said something else, so देखें, हमेशा आंसर प्रिसाइज और सेंसिबल होना चाहिए, मैं ये समझा रहा हूँ आप लोगों को, द एग्जाम्स आर वेरी नियर नाउ, इस वजह से समझा रहा हूँ आप लोगों को। खैर, तो यहाँ पे इस वजह से हम लोगों को इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ ट्रांजिशन एलिमेंट which might change color, and then they've also mentioned that there is a self indicator, and the self indicator is the cloudiness of the solution, ठीक है, the self indicator is the cloudiness of a solution। ये भी याद रखें कि any reaction in which you do not require indicator is because the reaction itself is a self indicator, ठीक है, आइदर KMnO4 डाला होगा या KI डाला होगा या K2Cr2O7 डाला होगा, तो वहां तो सेल्फ इंडिकेटर्स के कलर्स भी याद करने जरूरी है, जैसे कि हाउ वुड यू नो दैट टाइट्रेशन of anything using KMnO4 is complete? Any idea? The Purple? color is changed from Purple purple to color. to Colors. At the end of the colorless. reaction, the solution should become colorless. How should you know that a reaction in which titration is being done by K2Cr2O7, potassium dichromate? How would you know the titration has ended? From colorless to brown. No. From Is it brown to to green? नहीं from brown to From purple um to green, I think so. नहीं, she is correct. To green सही है, लेकिन कहाँ से green? brown to Orange. orange टैंक to के कलर brown. का ऑरेंज, ठीक है, टैंक के कलर का ऑरेंज, ठीक है, इट्स नॉट ब्राउन। वो जो ब्राउन 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 आपको याद आ रहा है, पोटेशियम आयोडाइड है, कलरलेस टू ब्राउन हो जाता है, दैट इज व्हेन यू यूज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तो ये कलर्स आपको याद होने चाहिए। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन। एक्सप्लेन व्हाई द ब्यूरेट इज देन रिंस्ड विद सॉल्यूशन बी। ब्यूरेट को हम फिर सॉल्यूशन बी से क्यों रिंस करते हैं? Was it ब्यूरेट to को हम remove सॉल्यूशन, the excess Sir, water? जी सर, so we can't write indicator in the B question B, right? We should just Yeah, say so so just that write color in change is order to visible. clearly observe the reaction in the The color analyte. change. yeah, you're not going to say indicator, you're going to say of analyte, because analyte itself is changing color. Okay. एंड ओवर हियर कलर भी नहीं, वो बल्कि क्लाउडीनेस पे बात कर रहे हैं, तो आप ये लिख सकते हैं सो दैट द क्लाउडीनेस ऑफ सॉल्यूशन इज क्लियरली विजिबल। आई थिंक दिस इज द स्पेलिंग ऑफ क्लाउडीनेस, आई माइट बी रॉन्ग। जी, अब आप बताएं, अनम ने आई थिंक बीच में बोला था टू रिमूव एक्सेस वाटर, आप सॉल्यूशन बी से करते हैं, ठीक है, Okay. तो why basically do you do it?
So that the if any water left doesn't like add Yes. or excess volume of the already solution B सवाल compared ये to है, container. अब यहाँ पे मजीद अंडरस्टैंडिंग करें तो ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि हम लोग जो है रिएक्शन को एक्यूरेट करने के लिए एक्सेस कोई वाटर बच गया उसके लिए हम लोग जो है ये कर रहे हैं. सो व्हाई इन द कॉनिकल फ्लास्क डिड वी ओनली रिंस विद वाटर, ठीक है, बट इन द ब्यूरेट वी रिंस विद वाटर एंड देन वी रिंस विद सॉल्यूशन बी. तो हम कॉनिकल फ्लास्क को भी सॉल्यूशन बी से रिंस करते हैं. हमने नहीं, कॉनिकल बट फ्लास्क को कॉनिकल सॉल्यूशन, फ्लास्क में तो वहां वो जाना था ना, the acid I think, so then that would यहाँ पे एसिड alter. नहीं, यहाँ पे एसिड नहीं है, लेकिन चलो सही है. बिल फर्स्ट आप लोगों की आसानी के लिए एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से अंडरस्टैंड कराता हूँ, ठीक है. देखें बेटा, दिस इज द ब्यूरेट, दिस इज द कॉनिकल फ्लास्क. एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर रहा हूँ बिटवीन NaOH एंड HCl, ठीक है. जो आपका NaOH है उसको मैं कह रहा हूँ कि ये एनालाइट है, और जो आपका HCl है उसको मैं कह रहा हूँ कि ये टाइट्रेंट है. सही है. तो मैंने जो ब्यूरेट लिया और मैंने जो कॉनिकल फ्लास्क लिया, सही है. अच्छा, इतनी जब इंफॉर्मेशन दे दी तो मैं आपसे पूछूं कि इस टाइट्रेशन के अंदर मैं फाइंड क्या कर रहा हूँ. मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर रहा हूँ जिसके अंदर NaOH एनालाइट है एंड HCl टाइट्रेंट है. Salt. The So Salt. concentration you're checking the concentration of HCl, okay, how much is needed to neutralize Yeah, it. how much is neutralize needed? it. Yeah. सही है. Yeah. फर्स्ट फर्स्ट सही है, ठीक है. बेटा सबसे पहली बात, फिर से मैंने बोला आसान जवाब है, पता नहीं क्यों आप लोग इतना कॉम्प्लेक्स सोचते हैं. कंसंट्रेशन फाइंड करनी थी, सॉल्ट वॉल्ट नहीं फाइंड करना, ठीक है. नेक्स्ट, जो चीज भी ब्यूरेट में होती है वो ऑलरेडी फाउंडेड होती है. जो चीज कॉनिकल फ्लास्क में होती है उसका कुछ फाइंड कर होता है. एनालाइट का नाम ही एनालाइट इसलिए क्योंकि हम इसे एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है. तो हम कंसंट्रेशन NaOH की फाइंड करेंगे, नॉट HCl, ठीक है. ये बातें समझ आ रही हैं आपको? Yes, yes. Yes, sir. What do you mean constant? Can you repeat? टाइट्रेशन इज ऑलवेज डन टू फाइंड कंसंट्रेशन, ठीक है. Yes. एंड द रीजन व्हाई वन थिंग इज कॉल्ड एनालाइट इज बिकॉज हम उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, उसकी कंसंट्रेशन फाइंड कर रहे होते हैं. देयर इज जस्ट अ फुल स्टॉप आफ्टर इट के मतलब कैल वी डू टाइट्रेशन, एंड इन दिस केस वी आर डूइंग टाइट्रेशन टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, फुल स्टॉप, ठीक है. Okay. ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये पता हो कि एनालाइट कौन है और टाइट्रेंट कौन है तो आप बता सकती हो आपकी टाइट्रेशन का मकसद. लाइक फॉर एग्जांपल नाउ, But how does this related to the rinsing? यस, तो अब आपसे यही सवाल करने वाला हूँ ना कि नाउ अंडरस्टैंड दिस. एनालाइट इज ऑलवेज इन द कॉनिकल फ्लास्क एज मेंशन्ड अबव. यहाँ पे एक लेबल डाला हुआ है, ये रहा एनालाइट, राइट. तो यानी कि कॉनिकल फ्लास्क में आपका NaOH डालना है हमें, और ब्यूरेट के अंदर हमें HCl डालना है. तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट मैंने जो अपैरेटस लैब से उठाया, मैंने कहा कि इसके अंदर इम्प्योरिटीज वगैरह होंगी, डस्ट वगैरह लगी हो सकती है. तो मैंने ब्यूरेट को भी वाटर से धोया और मैंने कॉनिकल फ्लास्क को भी वाटर से धोया. After I washed the conical flask and the burette, this is the burette by the way, and this is conical flask. After I washed them with water, I then proceeded to wash the burette with whatever I was going to add in the burette, which was HCl, right? I proceeded to wash the burette with the HCl, and I did not wash the conical flask with the HCl before starting the titration. The question is, why do I wash the burette with HCl then? The Or simple answer, else, or G, else Remove the the water. NaOH will become like, it'll become less concentrated, so then we won't get an accurate reading. वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया है, और यही जवाब है. ऐसे ही आप लोगों ने जो है ना सोचना है. देखें, द आंसर इज वेरी सिंपल. अगर पानी की बूंद भी लगी रह गई ना तो HCl अब जो हम डालेंगे ना ब्यूरेट में उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी. मतलब जो कंसंट्रेशन हमें HCl की पता थी, क्योंकि टाइट्रेंट की कंसंट्रेशन पता होती है, एनालाइट की फाइंड कर रहे होते हैं, तो जो भी टाइट्रेंट था उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी इफ एनी ड्रॉप ऑफ वाटर इज लेफ्ट इन द ब्यूरेट. तो दैट इज व्हाई आप HCl डालने से पहले ब्यूरेट को HCl से धो दोगे, और लाजमी है कि जिस कंसंट्रेशन का HCl बाद में डालना है उसी कंसंट्रेशन के HCl से धो, किसी और कंसंट्रेशन के HCl से भी ना दो, ताकि आपका एक्सपेरिमेंट मोर एंड मोर एंड मोर एक्यूरेट होता चला जाए. डू यू सर, गाइस? लेकिन जी, जो लेकिन क्लॉनिकल फ्लास्क जो क्लॉनिकल फ्लास्क है कॉनिकल उसमें भी फ्लास्क, तो पानी होगा.
जी उसमें भी तो पानी होगा, तो वो भी NOH की कंसंट्रेशन कम कर सकता है। ओके, NaOH की कंसंट्रेशन कम होने से मसला नहीं है। वाई? क्योंकि अंडरस्टैंड दिस, NaOH की तो कंसंट्रेशन हम फाइंड कर रहे हैं। हाँ, तो Yeah, so it And doesn't matter if there's फाइंड zero, कर रहे because then we're हैं। gonna take the same amount of अब आप सुनो, NaOH, यस सुने, right? Is यस इट्स गोइंग टू बेसिकली विद दिस। आपके पास जो कॉनिकल फ्लास्क है, अगर मैं उसमें पहले से 50 ml पानी भी डाल दूं, बट देन मैं ये बोलूँ कि कॉनिकल फ्लास्क में तो मैंने 100 ml पानी ही डाला, 100 ml NaOH का सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, फिर मैंने उसकी टाइट्रेशन की, तो अगर मुझे NaOH की कॉन्सेंट्रेशन इन 100 ml फाइंड करनी है, तो इवन इफ देर इज 50 ml इन द कॉनिकल फ्लास्क, आप इस 50 ml को इग्नोर कर दोगे, आप बोलोगे कि 100 ml NaOH reacted with, let's suppose, 78 ml HCl, because वाई? because concentration को चेंज आपने अपनी मर्जी से करना था ना। देखिए कॉनिकल फ्लास्क जो है उसके अंदर अगर लिक्विड बचा भी रह गया तो इट डज नॉट मैटर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स, reaction is या taking place between number of moles. If we found out that 50 moles of NaOH were present, that HCl reacted with 50 moles of HCl, sorry, HCl reacted with 50 moles of NaOH. So 50 moles of NaOH means that even if 100 ml used, so the concentration is 2 mole per ml या 2 mole per cm cube, ठीक है, सही है। और ये जो 50 ml एक्स्ट्रा वाटर था, इसको कंसिडर भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वाटर तो सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूशन करता है, वाटर तो सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूशन करता है ना। तो या वाटर आपके पास जो है वो कंसंट्रेशन चेंज करता है, लेकिन मोल्स तो नहीं चेंज कर सकता ना। मतलब आप एक ही मोल को 1000 ml में डालो तो भी एक मोल ही रहेगा, दो मोल को 1000 ml में डालो तो भी दो मोल ही रहेंगे, मोल्स तो चेंज नहीं होंगे। अच्छा, मसला ये है कि HCl की कॉन्सेंट्रेशन जो है उसकी चेंज की वजह से नुकसान है, क्योंकि यू आर फाइंडिंग आउट हाउ मच HCl वेंट। अब मिसाल के तौर पे एट द टिप यहाँ पर 2 ml वाटर था, तो जब आपने ब्यूरेट का टैप ओपन करा तो HCl वाले सॉल्यूशन के जाने से पहले 2 ml वाटर चला गया। आपकी रीडिंग में आप ये काउंट करोगे कि 2 ml वाटर को भी आप HCl ही कंसिडर कर रहे होगे, बिकॉज यू कुडंट डिफरेंशिएट, दे आर कलरलेस एंड सेम, ठीक है। तो इस वजह से HCl के ब्यूरेट को पहले HCl से धोना जरूरी था, यानी ब्यूरेट को जिस सॉल्यूशन को टाइट्रेंट बनाने वाले हैं उस सॉल्यूशन से पहले उसे रिंस करना जरूरी होता है। कॉनिकल फ्लास्क को करना जरूरी नहीं होता, बिकॉज कॉनिकल फ्लास्क में आप नॉन वॉल्यूम डालते हो, ब्यूरेट में आप वॉल्यूम फाइंड आउट करके डाल रहे होते हो टैप ओपन करके कि ओ कुछ रिएक्शन में 10 ml वॉल्यूम जाएगा, कुछ रिएक्शन में 6 ml जाएगा, आपकी मर्जी पे नहीं है। बट कॉनिकल फ्लास्क में तो आपको पता है कि आपने कितना वॉल्यूम ऑफ NaOH डाला, तो आप इस वॉल्यूम ऑफ NaOH को कंसिडर करोगे। फिर अगर एक्स्ट्रा दो चार ड्रॉप भी रह गए तो आप उनका वॉल्यूम थोड़ी निकाल के काउंट करते हो। क्या कभी ऐसा करते हैं हम, कॉनिकल फ्लास्क को धोया हमने, फिर हमने 100 ml उसमें अगर कोई चीज डाली, तो फिर बाद में एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हमने कहा ओ बिकॉज कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ग्लास के ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल्स एडहेसिव नेचर के होते हैं, चिपके हुए होंगे, तो हम 100 ml सॉल्यूशन कंसिडर नहीं करेंगे, हम 101 ml सॉल्यूशन करेंगे। नो, आपने 100 ml सॉल्यूशन कंसिडर किया, सही है। दिस कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड बेटर व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन अ लैब इटसेल्फ, ठीक है। बट दिस इज द जनरल अंडरस्टैंडिंग, ये सारी आपको पूछी नहीं जाएगी एग्जाम में, सही है, क्योंकि आप अभी सिर्फ IGCSE में, ठीक है, A लेवल्स में भी नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि ये है मतलब कॉमन सेंस नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, इससे सवाल नहीं बन रहा होता है, ठीक है। सवाल जो बन रहा होता है वो ये बन रहा होता है कि ब्यूरेट को किससे धोया जाए, तो यू शुड ऑलवेज वॉश द ब्यूरेट विद द टाइट्रेंट, यू शुड ऑलवेज वॉश द ब्यूरेट with the titrant. And what is the titrant? Titrant is always the solution that is going to be added in the burette. Khatam. So over here they have used explain why burette is then rinsed with solution B to remove any water. To oh, sir, can I write in order to maintain the concentration of the titrant? yes, bilkul, to remove any water left remaining in burette
फुल स्टॉप, बल्कि कॉमा लगा के आगे ये भी लिख दें, टू मेंटेन concentration of You know, if you really think about it, it's also because the conical flask is easy to dry from water, but the burette is very hard to dry, if you think about it. yeah I mean नहीं it's not necessary, इसीलिए तो मैंने आपको एग्जांपल ये दी थी। The burette इतना पतला होता है ना। आप कॉनिकल फ्लास्क में पहले 50 ml पानी डाल के फिर आप ये टाइट्रेशन स्टार्ट करें, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो 50 ml तो ड्राई नहीं हो सकता ना, 50 ml तो ड्राई नहीं हो सकता। तो द थिंग इज नॉट अबाउट ड्राइंग पानी, वो भी तब भी मसला Yeah. नहीं है, यही तो समझाने का मकसद है। जो आपको समझा रहा हूँ वो ये है कि जो पानी है जो कॉनिकल फ्लास्क में है, उसकी वजह से एक्सपेरिमेंट में फर्क पड़ेगा ही नहीं, बिकॉज आप इसको कंसिडर Yeah. ही नहीं कर रहे। आप कंसिडर कर रहे हो कि 100 ml NaOH डाला तो Sir, 100। don't worry, I get it. I was just, हाँ हाँ हाँ, you know. सही है, वो सही है, ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, describe how the result of experiment 2 would be different if conical flask is rinsed with aqueous ammonia after rinsing with water. Explain your answer. देखें बेटा, तो इसको कैसे अब You would need more like solution. कौन सा solution? Titrant? You would You'd need need more titrant? more solution B. और मुझे नहीं, पता नहीं, मैंने असल में ये yeah. सब पढ़ा ही नहीं है, तो अभी मैं पढ़ लूँ एक बार। empty the You would need conical Yeah. more solution. Yeah. Yeah, I think so as well. distilled water, rinse burette with solution B. Okay, whose solution B? Copper 2 sulfate labeled A and B. Solution A and B have different concentrations. ठीक है, तो rinse the burette. So copper 2 sulfate is in the burette, I believe. ठीक है, fill burette with solution. हाँ, तो copper 2 sulfate is always in the burette. The question is, describe how the results of experiment 2 would be different if conical flask is rinsed with aqueous ammonia after rinsing with water. अच्छा, तो conical flask के अंदर तो बेटा डाला ही aqueous ammonia था, राइट? अगर कॉनिकल फ्लास्क में एक्वस अमोनिया हम लोगों ने डाला था, अब मजीद एक्वस अमोनिया से इसको रिंस कर दिया, तो मसला ये हो जाएगा, नाउ देयर आर सम मोल्स ऑफ अमोनिया इनसाइड द कॉनिकल फ्लास्क धोने के बाद, राइट? वो भी तो काउंट होंगे, उनको भी तो अब टाइट्रेशन में रिएक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप खाली डिस्टिल्ड वाटर होता विच हैड नो मोल्स ऑफ अमोनिया, उसके अंदर फिर आप अपने गिवन वॉल्यूम ऑफ अमोनिया डालते तो मसला नहीं था। लेकिन अब अगर आपने क्योंकि इसको अमोनिया से ही धो लिया, नाउ देयर आर सम मोल्स ऑफ अमोनिया ऑलरेडी इन द कॉनिकल फ्लास्क। अब let's suppose you added 100 moles or and there were 4 moles previously. Now the titration is happening for 104 moles. The answer you are going to get is going to be wrong. And बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, because now there are going to be 104 moles of analyte instead of 100. More titrant will be required. So we will say more of solution B would be required during titration. Full stop. Next question. Did you Wait, so switch? then shouldn't we write what's gonna happen? Isn't this just 1 mark? अच्छा, हाँ ये तो So है भी, like दो the मार्क्स। results will be सही है, off or तो something. हाँ, तो अब इसको 2 मार्क्स का बनाते हैं। मैं तो इसको एक्सपेक्ट कर रहा था कि दिस इज 1 मार्क। चलो सही है, रुको। मोर ऑफ सॉल्यूशन बी वुड बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग टाइट्रेशन एज नाउ देर आर greater moles of ammonia in conical flask. Full stop. Next question. Reduce which solution of copper to sulfate A or B is more concentrated? Is A more concentrated or B more concentrated? So the question is very easy. So if देखें बेटा, देखें, अगर हम ये बोल रहे हैं कि Are we conical going to use the results in table 2.1? yes exactly we Yeah, are going, yeah. So अगर हम ये देख रहे हैं कि अमोनिया दोनों एक्सपेरिमेंट्स में सेम अमाउंट यूज हुआ 25 सेंटीमीटर एक but में, there was less copper sulfate used in one and more used in the other one. Yeah, so then that automatically determines which one was more concentrated. so which one was more concentrated? B. B. Because less volume of B it less, was yes. part. So solution B is more concentrated. Solution B
is more concentrated. Next question. Deduce how many times more concentrated this solution of copper to sulfate is than other solution of copper to sulfate. देखें बेटा, how many times more would it be concentrated? तो उसके लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको सीधा सीधा क्या करना 1.5. रेशो लेना पड़ेगा जी। 1.5 के अराउंड ही होगा। एग्जैक्टली 1.5 कैसे पता आपको? एग्जैक्टली No, 1.5 no, I'm giving estimate. Yeah. सही है। तो जो तरीका है रेशो का वो ये है कि छोटे से बड़े को डिवाइड कर दो, तो 1:2 कितना हो जाएगा? मतलब 11.1, 17.8 डिवाइड बाय 11.1 व्हाट्स द 1.5. एग्जैक्टली? Yeah. माशाल्लाह। Well, 1.5:1 सही एक है। मिनट एक मिनट It's 11.1 1.6. 1.6 1.6 sorry. Yeah, 1.6. Yeah, मैं भी वही देख रही थी 1.6. Yeah. 1.6 reduce how many times more concentrated this solution of copper to sulfate is than the other solution of copper to, तो इसका मतलब 1.6। अच्छा, ये आंसर नहीं लिखना आपको, by words में 1.6 times, तो right? हाँ, it is approximately 1.6 के आगे भी कोई वैल्यू आ रही है तो इसलिए आप बोलेंगे कि approximately, it is Yeah, approximately। okay. Because it's 1.6036. हाँ, तो 1.6 times more concentrated। तो 1.5 ज्यादा अच्छा वर्ड लगता है, लेकिन हम तो वो बोलते हैं जो कि वैल्यू आ रही हो, बिकॉज 17.7 और 11.8 दोनों आपस में डिवाइड करो तो जो आंसर आएगा वो आंसर आपको लिखना था। ठीक है। अच्छा, एक बात और, अब यहाँ पे ये देखें कि Wait, Yes, sir, we have 17.8 divided by 11.8 is 1.5. यहाँ पे 11.1 लिखा है आपने। अच्छा हाँ, that's why 17.7 divided by Oh, 11.8 is 1.5. And sir, you wrote Yeah. 17.8. That's why 1.6 आया. एक मिनट, तो 11.8 से जब डिवाइड किया तो क्या आंसर आया? so नहीं, it's 17.7. 1.508. Sir, no, guys. Sir, it's 17.7 divided by 11.8, not 17.8. Yeah. Oh, तो वो वो करके हमारा 1.5 आ रहा है. 1.5. Yeah, exactly 1.5. Yeah, so This was the एग्जैक्टली 1.5 more. 1.5। Yeah. 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 हाँ हाँ, जबरदस्त जी। तो Yay. बिल्कुल, तो My guess was अप्रोक्सीमेटली correct. क्या बात है, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, describe how the reliability of results obtained can be checked. How can we check the reliability? By Always, how repeating? can you see? Yeah, Repeat Repeating the experiments. experiment, and take the repeat average. the experiment multiple times and take the AVE average। लेकिन यहाँ पे लगा फुल स्टॉप नहीं लगाया करें बेटा, टेक द एवरेज पे फुल स्टॉप नहीं लगाया करें। हम लोग केमिस्ट हैं ना, ठीक है, हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है। अब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट 10 दफा रिपीट किया, 10 दफा हमने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, हमारे पास वॉल्यूम आई 11.8, 11.7, The 11.9, average reading? 10.1, 11.7, 11.6 and Until 11.8, like a certain values are in a range 4, or 5, something. 6, 7, 11.9 and 11.7। ठीक है, ये हमारी 10 वैल्यूज हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नहीं है सॉरी, ये तो 10 भी कर देते हैं, एक और वैल्यू लिख देते हैं, 12.0 भी कर लेते हैं, 12.0। ठीक है, सही है। अब हमने कितनी वैल्यूज कितनी दफा टाइट्रेशन करी है? 10 10 टाइम्स, बार. राइट। विल वी से कि हम अब एवरेज लें तो इन सबको प्लस करें और डिवाइड बाय 10 कर दें, तो हमारा सही होगा क्या ये? Nice. I think we जस्टिफाइड have to remove 12 and 10 and then do it. वी हैव टू रिमूव ओनली 10.1। अगर हम 12 भी रिमूव करेंगे ना तो फिर हमें 11.6 भी रिमूव करना पड़ेगा। ऑन व्हाट बेसिस आर वी रिमूविंग 12.0? 11.9 से 0.1 आ गई तो, और 11.6 11.7 से Okay. एक पीछे। ठीक है, तो इफ वी रियलिस्टिकली लुक एट इट, द ओनली रॉन्ग आंसर इज दिस। सो हमने 10 दफा So we करना take the average of all एवरेज। readings except the anomaly? Anomaly. Yeah. हाँ, सो वी आर नॉट गोइंग टू Anomalous. से anomaly over here, हम बोलेंगे टेक द एवरेज ऑफ closely obtained results। सही है, Oh, okay. closely obtained results।
या रिजल्ट्स विच आर सिमिलर, सिमिलर रिजल्ट्स, ठीक है। तो एवरेज ऑफ सिमिलर, ये तो स्पेलिंग नहीं होती सिमिलर की, सिमिलर आई थिंक इज द स्पेलिंग ऑफ, ऑफ नहीं लिखना, बस रिजल्ट्स लिखना है, सही है। तो think about it like you're in the lab as well, ठीक है। Next question. Reduce the volume of solution A required when experiment 1 is carried out with 10 centimeter cube of aqueous ammonia. If we use 10 centimeter cube of aqueous Seven, ammonia, then how much? 7.08, because How 17.7 multiplied by 10 divided by 25 is equal to 7.08 ये values कहाँ से ले? cm cube. Oh, because it's like 25 cm cube of aqueous ammonia requires 17.7 volume of aqueous copper 2 sulfate. So then you just have to do the cross multiplication thing. So you are going to say 10 centimeter cube of ammonia is going to And require X. X. So Yeah. X is equal to So 17.7 times 10 divided by by 25. 7.08. the answer is 7.08. हम लोग हमेशा टू सिग्निफिकेंट फिगर लिखते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7.1. So we are going to require cm cube. 7.1 cm3, ठीक है। Next question. In the experiment 1 and 2, the volume of aqueous ammonia is measured using a measuring cylinder. Give an advantage and a disadvantage of using volumetric pipette instead of measuring cylinder to measure the volume of aqueous ammonia. So advantage क्या होगा? एक That's पिपेट like अगर हम यूज करें तो more accurate advantage is and it is more accurate, full stop, ठीक है। तो pipette is more accurate, PI spelling है pipette की, PIPE PI pipette is more, pipette is a more Is it because it has like smaller readings? apparatus. Um disadvantage, smaller readings. Pipette doesn't have any readings, या मतलब चलो सही है, हाँ pipette has readings, but pipette का मसला सबसे बड़ा क्या है कि that it takes time. Like बहुत that देखकर it we have to stop. takes time, ठीक है, सही है। आप एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ही ले सकते हो पिपेट के अंदर। मेजरिंग स्टैंडर्ड तो 100 ml के होते हैं ना, लेकिन पिपेट Right. 100 ml के नहीं हो सकते, ठीक है। पिपेट तो 1 ml का, 5 ml का, 20 ml का, 10 ml का, 25 ml का, इस तरह की पिपेट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 100 ml अब डालना है, तो आप क्या करो, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, देन यू आर गोइंग टू रिक्वायर दैट यू यूज द पिपेट 4 times। तो जैसा कि अनम ने कहा कि आपको टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो एडिंग फ्रॉम पिपेट इज टाइम कंज्यूमिंग, एडिंग Adding large quantities? एडिंग लार्ज क्वांटिटीज कर लो। क्वेश्चन 3 स्टार्ट्स ऑन नेक्स्ट पेज, वाओ, ठीक है। अच्छा जी, आ गया आसान वाला सवाल। वैसे तो ऊपर वाला भी आसान ही था। स्टूडेंट टेस्ट टू सॉलिड्स, सॉलिड ई एंड सॉलिड एफ। टेस्ट ऑन सॉलिड ई, टेबल 3.1 shows test and the students observations. Test 1, gently heat half of solid E in a boiling tube. A solution forms, steam is given off and condensation forms at the top of the tube. Test 2, dissolve the remaining solid E in water to form solution E. Divide solution E into 3 portions. To the first portion of solution E, add aqueous sodium hydroxide dropwise and then in excess. A brown precipitate forms. वैसे तो ऊपर भी हमने कुछ पढ़ लिया है। Heat half of solution in a boiling forms steam given off and condensation forms at top of the tube. ओके, सही है, whatever। तो इसमें तो बस ये बता रहे हैं कि स्टीम गिवन ऑफ हुई, जाहिर सी बात है सॉल्यूशन है, तो उसमें वेपर बना होगा और फिर टॉप ऑफ ट्यूब में उसकी कंडेंसेशन होगी, वापस से वाटर बन गया होगा मोस्ट प्रोबेबली, बट लेट्स, अभी तक ये ऐसा लग रहा है, ठीक है। जब आपने उसको वाटर में डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन ई को बाकी वाटर में डिसॉल्व किया,
तो 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। तो पहले पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन ई में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और फिर एक्सेस में डाल दिया। ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म्स व्हिच रिमेन्स व्हेन एक्सेस इज एडेड। ब्राउन प्रेसिपिटेट या रेड प्रेसिपिटेट हमेशा तब Iron. बनता है जब आयरन आयंस होते हैं। सोडियम Iron, हाइड्रोक्साइड तब yeah. बनता है जब भी आयरन आयंस होते हैं। और कौन से चार्ज वाले? प्लस। Fe2 plus, Three Fe3 plus, plus. three plus, नॉट three plus. Red नॉट brown Two, is for Fe3 two plus, plus वाले and green होते हैं then ना? हाँ जी 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 no, बिल्कुल 2+ but वाले then in excess they turn brown. ऑन द सरफेस दैट इज ट्रू ऑन Yeah. द सरफेस, क्योंकि हवा के अंदर मौजूद ऑक्सीजन से वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, बट Mm-hmm. यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं हुआ हुआ ना, विच फॉर्म्स विच रिमेन्स एट, मतलब उन्होंने कभी ग्रीन का जिक्र ही नहीं किया। तो हम कैसे बिलीव कर लेंगे Fe2+ थे भी? तो फिलहाल हम Fe3+ को ही फोकस रखेंगे। ठीक है, आगे चलो। टेस्ट नंबर 3, warm the products of test 2 and test of any gas, the gas turns red litmus paper blue। तो कौन है भाई ये जो रेड लिटमस पेपर ब्लू को कन्वर्ट करता है? अमोनिया गैस। अमोनिया Ammonia. गैस द ओनली गैस विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, राइट? ठीक है, तो ये आपकी कब होती है? जब वार्म करते हैं आप किस चीज को? जब आप वार्म करते हैं किसी अमोनियम सॉल्ट को, राइट? तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट मौजूद होगी, बट लेट्स सी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। To the second portion of solution E, add 1 centimeter depth of dilute nitric acid followed by few drops of aqueous silver nitrate। ओह वाह, तो आपके पास जो है सिल्वर नाइट्रेट डाला आपने, तो कोई चेंज नहीं आया। यानी कि ना तो कोई क्लोराइड है इसमें, ना ब्रोमाइड है इसमें, ना आयोडाइड है इसमें, राइट? And no क्योंकि titrate either. नो No टाइट्रेट। halides. टाइट्रेट का क्या मतलब है यहाँ पे? Oh, sorry. No, oh my, like the, sulfate, nitrate, सल्फेट तो, sulfide. सल्फेट का तो टेस्ट ही नहीं है ना सिल्वर नाइट्रेट बेटा। सिल्वर नाइट्रेट किसका टेस्ट था? इट वाज द टेस्ट फॉर Fluorine. क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, नॉट Halides. हैलाइड्स Oh, एक्सेप्ट क्लोरीन, याद रखिएगा, और ईन नहीं, आइड्स। ठीक है, हीन नहीं, आइड्स। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का टेस्ट था ना। whenever you add dilute nitric acid and silver nitrate, if chloride is present white precipitate forms, if bromide is present creamy precipitate forms, and if iodide is present येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्स। ये याद करने हैं आपको। ठीक है बेटा, पेपर 6 में गिवन होंगे, आई अंडरस्टैंड, बट यू स्टिल हैव टू रिमेंबर देम फॉर पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 आपका अभी आ रहा है 29 या 30 अप्रैल को आपको पेपर 2 है। ठीक है, तो यू गाइस हैव टू रिमेंबर दीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट 5 to the third portion of solution E, add 1 centimeter depth of dilute nitric acid followed by drops of aqueous barium nitrate, white precipitate forms। ओके, तो बेरियम नाइट्रेट डालने पे व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, sulfate. यानी कि सल्फेट आयन प्रेजेंट होगा। ठीक है, Right? बिकॉज दिस इज द टेस्ट फॉर सल्फेट आयन। जी Is it? Can I leave the class क्योंकि मेरी दूसरी क्लास शुरू हो गई है बायो की। श्योर, ओके बेटा। Alright. Lafes, guys. हाफिज। Lapis. State Bye what bye. state what conclusion can be made about E from the observations in test 1। सही है, तो टेस्ट 1 की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उससे क्या कंक्लूजन दिया जा सकता है? What conclusion can be made from observations of test 1? So Water is present. yes, water is present of, we knew water would be present because अच्छा, there was no solution। मैं इसको कब से solution पढ़ा था? This is solid, so it contains water, it contains even we can say solid E is Hydrated. hydrated, full stop। ठीक है, hydrated होता है, यहाँ पे लिख दो water। So hydrated is when water is like completely mixed in the thing, right? And then water of crystallization is when it's like it can be evaporated. What? So I don't get Hyd- it. I don't understand hydrated answer A. hydrated, एक मिनट पहले मैं जैना का जवाब दे दूं। हाइड्रेटेड इज व्हेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट, फुल स्टॉप, बस। ठीक है, अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना हो, नॉर्मल पानी हो, बोथ waters यानी H2O they have the tendency to evaporate when they are heated। ठीक है, Hydrated is तो okay. हाइड्रेटेड लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले पानी को कहते हैं, ये याद रखना है हमें। ठीक है, अब आप मरियम जो पूछ रहे हैं वो ये है कि देखें Oh wait, बेटा, no, sir. I didn't read the question properly. My bad. I thought it meant like overall. So I was like, why are we only stating about water? But
टेस्ट 1 लिखा हुआ है। सिर्फ टेस्ट 1 लिखा हुआ है बेटा अभी तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गैस प्रोड्यूस्ड टेस्ट 3। टेस्ट 3 में जो गैस प्रोड्यूस हुई थी वो अमोनिया। 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 अमोनिया NH3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट व्हाट कंक्लूजन कैन बी मेड अबाउट सॉलिड E Contains फ्रॉम no halide ions. इट कंटेन्स नो हैलाइड आयंस। टेस्ट 4 यही वाला है क्या? हाँ जी। यही है। इट कंटेन्स नो हैलाइड ions. Identify the three ions of solid E, Fe plus 3 ion. सही है। दूसरा आयन हमारे पास कौन सा है जिससे अमोनिया बनती है? Ammonia. वो So अमोनियम ammonium Ammonia. NH4 एंड sulfate SO4 2 SO4. minus. So it was a very easy question. We could have used the help of whatever test sheet they've given us, but if we don't want to use the test sheet, then we can do it without the test sheet. So Sir? sheet don't really, it doesn't really matter. Ji sir. Why did you write ammonia instead of ammonia? Did you? मैंने सही से देखा नहीं. Because wrote ammonium. ammonium is what makes ammonia gas. I wrote Yeah, I know, but we can write that. No, because what? it's the ion that's present now. Ammonia isn't there, it's ammonium. Yeah. Okay. देखें देखें जो अमोनिया था ना Are you NH3. talking about B or D? D. She's talking about D, sir. Okay, सुने. You're asking me why we wrote ammonium ion? Because ammonia is not an ion. ठीक है, तो आप NH3 तो लिख, Yes. ठीक है, सही है। पहली बात NH3 इसलिए नहीं लिख सकते बिकॉज इट इज नॉट एन आयन। दूसरी बात ये है कि द अमोनिया गैस इज ओनली प्रोड्यूस्ड when sodium hydroxide is added या any alkali is added to an ammonium salt. Ammonium salt is something which contains the ammonium ion and then the salt thing is heated. तो यहाँ पे क्या लिखा है? Yeah. Product of test to any gas produced, ठीक है। तो आपके पास जो है जो टेस्ट 3 था उसके आपने उसको वार्म कर दिया और उसको वार्म करने से पहले आपने पिछली बारी में ऑप्शन में क्या किया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड Sodium डाला था, hydroxide. अल्कलाई डाला हुआ था, अल्कलाई भी डाला हुआ है और उसके बाद आपने उसे हीट भी कर दिया। तो अल्कलाई डाल के हीट करने पे अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है जब भी अमोनियम आयन मौजूद होता है। तो आयन कौन सा हुआ? अमोनियम। Yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन, solid F is zinc sulfide. Complete expected observation. The student dissolves solid F in water to form solution F. The student divides solution F into three portions. To the first portion of solution F, the student adds aqueous ammonia dropwise until it is in excess. Observations adding dropwise and observations in excess. ठीक है, तो when you add drop by drop ammonia in something containing zinc sulfide, so just understand ये क्वेश्चन सल्फाइड के बारे में आई नहीं है, कल White precipitate. जिंक आयंस के बारे में। बिल्कुल, तो जिंक आयंस जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप में तो हर चीज प्रेसिपिटेट ही बनाती है। जिंक, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम उनका वाइट प्रेसिपिटेट है आपके पास जो टेस्ट लिखे हुए हैं, राइट। तो वाइट पीपीटी फॉर्म्स। अब सवाल ये है कि डज इट डिसॉल्व और डज इट नॉट डिसॉल्व? It dissolves वाइट because it's soluble in excess. सही It है, gives तो a colorless solution. आप यहाँ पे ये बोलेंगे कि पीपीटी डिसॉल्व्स And gives a colorless solution. इन एक्सेस एंड गिव्स अ कलरलेस सॉल्यूशन। बिल्कुल, क्योंकि व्हाइट कलर की चीज थी, डिसॉल्व भी तो Sir, कलरलेस can we write PPT instead of precipitate? Yes, in exams you can just Yeah. write PPT. Ji. PPT dissolves in excess, giving a colorless. Sorry, ठीक है, Solution. आप जो है उसको PPT कह सकते हो। Next, the second portion of solution F, the student adds a few drops of acidified aqueous potassium magnate. Observations, ठीक है, तो observations बताइए, ठीक है। सेकंड पोर्शन जो सॉल्यूशन F का, स्टूडेंट उसमें The acidified aqueous. aqueous potassium magnate डालता है, ठीक है। Yeah. एसिडिफाइड aqueous potassium magnate जब वो डालता है, Changes color from purple to colorless because हाँ, of the sulfite. सही है, बिकॉज ऑफ द सल्फाइड। एक्सेलेंट, ठीक है। सो वो बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो सल्फाइड से वो सल्फेट होने की कोशिश करेगा, SO3 से SO4 ऑक्सीडेशन होने की कोशिश होगी,
तो उसकी वजह से एसिडिफाइड KMnO4 का कलर पर्पल से कलरलेस होगा, ठीक है। तो कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम पर्पल टू colorless. Next question. To the third portion of solution F, the student adds 1 centimeter depth of dilute nitric acid followed by a few drops of aqueous barium nitrate. ये क्या बात हुई? स्टूडेंट ने जो है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेरियम नाइट्रेट डाले, तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा? कुछ नहीं अगर होगा तो ना, सॉल्यूशन F because में, it's not sulfate. या अगर सॉल्यूशन F में डालें जो कि सल्फाइड कंटेन करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसने तो F में ही डाले, मतलब उसने KMnO4 डालने के बाद नहीं डाले, उसने KMnO4 डालने से पहले, या फिर यूं समझ लो कि सॉल्यूशन का एक दूसरा पोर्शन है, थर्ड पोर्शन, नॉट द सेकंड पोर्शन, क्योंकि सेकंड पोर्शन की ऑक्सीडेशन होकर सल्फेट बना था। थर्ड पोर्शन एज इट इज था। थर्ड पोर्शन के अंदर इफ ही एडेड व्हाट डिड ही ऐड, इफ ही एडेड बेरियम सल्फेट, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है बेरियम नाइट्रेट, देन बेरियम सल्फाइड वुड फॉर्म एट मोस्ट एंड बेरियम सल्फाइड वुड डिसॉल्व, सो नो चेंज वुड बी ऑब्जर्व्ड, नो चेंज would be observed, 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 full stop. On to the next question. Solid cobalt 2 oxide is a base which is insoluble in water. It reacts very slowly with cold dilute sulfuric acid to form solution of cobalt 2 sulfate. Describe how to make pure dry crystals of hydrated cobalt 2 sulfate. You are provided with cobalt 2 oxide dilute sulfuric acid in common laboratory apparatus. And the question is of 6 marks, and it is a beautiful question because in paper 4 this question comes for 3 marks. यहाँ पे the question has come for 6 marks, so that is amazing, ठीक है। आपको फ्री के नंबर देने के लिए बेटा 2023 में उन्होंने बुलाया था, तो अंडरस्टैंड करेंगे जरा सी बातों को। कोबाल्ट 2 ऑक्साइड क्या है? एक बेस है जो कि पानी में क्या है? इनसॉल्युबल है। वो बहुत स्लोली किससे रिएक्ट करती है? कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, ताकि क्या बन जाए? सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट 2 सल्फेट। सॉल्यूशन का मतलब कोबाल्ट 2 सल्फेट कैसा है? कोबाल्ट 2 सल्फेट कैसा है? सॉल्युबल है, सॉल्यूशन बना रहा है ना, तो कैसा है? हाँ सॉल्युबल है। कैसा है? सॉल्युबल है सॉल्युबल। Soluble. फुल स्टॉप, ठीक है। तो केस क्या है हमारा यहाँ पे, हमें क्या करना है? मेथड ए लिखना है पूरा, पहले उसे गर्म करना है ताकि खबर तो कर लो वो गर्म कहाँ पहुंच गई हम लोग। मैं ये बोल रहा हूँ कि केस क्या है। Like, केस में what हम is ये it? Is it हाँ, precipitation or something? या no, केस क्या it's the first method, the one है? which वेरी we use the I know Or the thing, yeah, insoluble? you excess wala access बहुत method. अच्छा बोल Yeah. रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रही है माशाल्लाह, बिल्कुल सही है। इट इज द फर्स्ट वन इन विच वी प्रिपेयर अ soluble salt from an insoluble reactant। क्या? soluble salt Yes. from excess of insoluble reactant। तो बिल्कुल सही बोला आपने। उसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स हैं, एक सेट ऑफ रेगुलेशंस है, वही हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास आखिर में सॉल्ट बननी चाहिए वो कैसी बननी चाहिए? Hydrated. So हाइड्रेटेड। we Sir, can won't you यानी कि write. explain again the question? मैं समझा दूंगा, सही मैं समझा रहा हूँ, शुरू से समझा रहा हूँ। देखें बेटा, क्वेश्चन का एम क्या है? आपको क्या प्रिपेयर करने को बोला है? Cobalt 2 कोबाल्ट sulfate. सल्फेट, जो कि कैसा है? Ink. सॉल्युबल है। Oh, ठीक, soluble. सॉल्युबल I है, thought. ठीक है। Okay. कोबाल्ट 2 सल्फेट इज सॉल्युबल। हाउ डू आई नो इट इज सॉल्युबल? क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट 2 सल्फेट बन रहा है। सॉल्यूशन का मतलब समथिंग व्हिच डज डिसॉल्व इन वाटर, Yeah. ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो कोबाल्ट 2 ऑक्साइड है वो कैसा है? इनसॉल्युबल। Basic. Oh, बेसिक insoluble. को तो जोड़ो, बेसिक को क्या करना है हमने? इनसॉल्युबल। कैसा है? इनसॉल्युबल, जो कि किससे रिएक्ट कर सकता है? सल्फ्यूरिक एसिड से, ताकि कोबाल्ट 2 सल्फेट बन जाए। यानी उन्होंने आपको खुद बता दिया बेटा कि रिएक्टेंट कौन सा यूज करो, कोबाल्ट 2 ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करो, ठीक है। अब जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि व्हेनेवर आई मेक अ सॉल्युबल सॉल्ट आई हैव टू ऑप्शंस। डू आई हैव Hmm. टू ऑप्शंस? ये तो पता है आपको कि आपके पास दो ऑप्शन थे यहाँ पे। Yeah. कौन कौन से दो ऑप्शन थे? One was titration and the other one was the one Zana said. Very good. One was titration, and the other one was the one which Zana said, which is to use
excess of an insoluble reactant. Okay. यहाँ तक अभी तक Okay. मैंने बताया था, समझ आया ये सब? Okay. Yeah, I got it. ठीक है, अब जो मैं नेक्स्ट बात कर रहा था, So जैना ने how do we बोला know that dilute sulfuric acid is insoluble? इज soluble, but dilute sulfuric acid is an acid, it is always soluble. dilute का वर्ड तो बोल रहा है कि वो पानी में मिला हुआ है. Why do you say it's insoluble? Oh, so then, oh, okay. So not both of them have to So be insoluble. It's just both of them, one. they are never, both of them are never soluble. अभी इसीलिए तो reactants नहीं बोलते, reactant बोलते हैं. using an insoluble reactant बोल रहा हूँ मैं. Only Okay. one of the reactants, which is this one. क्योंकि हम इसको Okay. ज्यादा ले लेंगे, soluble वाले को कम ले लेंगे, खत्म. Wait, Sahi. but sir, how do you know that oxide is insoluble? Chicken. क्योंकि क्योंकि लिखा हुआ लिखा हुआ है. है. Oh shit, never mind. अच्छा, Sorry. तो माशाल्लाह से Guys, I didn't eat anything सुबह से. $1 million क्वेश्चंस. सही है बेटा, आगे बढ़ते हैं. मैं Oh my god, this is gonna be me in the paper. सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, ना और करे. हालात मेरे भी खराब हो जाएंगे. अच्छा ये देखिए, अगली बात क्या है? Hydrated होगा. हाइड्रेटेड तो हो. हम ड्राई मैं करेंगे लेकिन हम क्रिस्टलाइजेशन नहीं निकालेंगे, मतलब वाटर एक्सीलेंट, हम ड्राई करेंगे लेकिन क्रिस्टलाइजेशन वाले मेथड से. एवापोरेशन टिल ड्राइनेस नहीं करेंगे. शाबाश, ठीक है. एवापोरेशन टिल ड्राइनेस क्या करता है? वो बोन ड्राई कर देता है चीजों को. बोन ड्राई का मतलब होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बाहर निकल जाता है. समझ में आई? Yeah. तो वी डोंट वांट दैट. ओके, व्हाट डू वी वांट? वी वांट हाइड्रेटेड. वी वांट हाइड्रेटेड. ठीक है, अब पूरी स्कीम बनेगी, आपके जहन में बननी चाहिए. आप क्या करेंगे? आपको जैसे समझाया है But वैसे ही we can करेंगे. take it from the notes. क्या? I was saying we could take it from the notes. हाँ, मतलब we could take it from the notes, but I've never We could prepared take the cobalt whole to paper sulfate. from the notes. So Yeah, and I've never prepared cobalt to sulfate. तो यहाँ पे जल्दी लिख लेते हैं. Going to notes, Okay. swapping सबसे ज्यादा सही है. यहाँ पे लिख लें कि हम लेंगे take a beaker, क्योंकि उन्होंने बोला apparatus भी mentioned है, और 6 मार्क का सवाल है तो कुछ तो दो उनको. ठीक है, तो we are going to start with saying take a beaker and add की जगह और अच्छा पता है क्या है? Pip it out 25 centimeter cube of concentrated Is it just me or is the sentence not making a little bit of sense? sulfuric acid. If you've seen a sentence look like this for the first time, then good morning. देखें, pip it out का मतलब होता है pip it out, मतलब pipette से किसी चीज को निकाल के डालो कहीं और. ठीक है, तो आप एक बीकर लो और उसमें pip it Yeah, out but करो then 25 सेंटीमीटर. take a beaker and pip it. Oh, okay. तो उसमें 25 मेरी सेंटीमीटर हो गई good morning. पिपेट से बाहर निकालो ना. 25 सेंटीमीटर कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड पिपेट में था, उसको आउट कर दिया ना आपने बीकर के अंदर. Yes. मतलब सही है. तो Yes. टेक अ बीकर एंड पिपेट आउट 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉन्सेंट्रेट sir, सल्फ्यूरिक. लेकिन in the notes it's always written like dilute acid. जी, तो अब मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड क्यों लिया. सबर तो करें. एसिड इन इट. Why did I say concentrated is because हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हमें क्या लिखा हुआ है? It reacts very slowly with With cold. Dilute. sulfuric acid. The reaction is very slow. Oh. Cobalt to oxide is a very weak base. ठीक है, तो हम तो उस लेबोरेटरी में, concentration ज्यादा चाहिए. हाँ, तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं लेबोरेटरी से जल्दी से फारिग होकर चला जाऊँ. तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लूंगा. जो वो है हमारा नोट्स, उसके अंदर हम हमेशा डाइल्यूट क्यों लेते थे? क्योंकि हम रिएक्टिव बेसिस लेते थे. वो बेसिस लेते थे जो हड़ाहुड़ी मचाती हैं, लड़ती हैं. कार्बोनेट्स लेते थे हम. ठीक है, कार्बोनेट्स आर ऑलवेज रिएक्टिव, दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एफरवेसेंस. अगर हमने कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, शदीद एफरवेसेंस होगी, और शदीद एफरवेसेंस होती तो आपको पता है क्या होता है. बहुत सारी पेप्सी एक ग्लास में डाल लो तो बहुत सारी एफरवेसेंस होगी, तो क्या होता है? स्पिलेज. तो इस वजह से क्या करते हैं? पेप्सी आराम आराम से डालते हैं ताकि एफरवेसेंस कंट्रोल की जा सके. समझ में आई बात? तो यू वांट टू कंट्रोल द एफरवेसेंस ड्यूरिंग अ रिएक्शन. यहाँ पर तो अव्वल तो एफरवेसेंस है ही नहीं,
क्योंकि बेस और एसिड मिल रहा है, सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा, ठीक है। एंड देन द Neutralization. बेस इज वेरी स्लोली रिएक्टिंग, तो आप कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ले लोगे, ठीक है। नाउ जेंटली Heat using. हीट द Wait, सॉल्यूशन। wasn't it like you take the excess एक of whatever insoluble हाँ हाँ हाँ, base and then add it to the बस Yeah. acid, सेकंड and बात नहीं कर लो। then नहीं, the wait separation wait. is to filter to remove At excess of first reactant? Excess you legi na. first you heat it Yeah, and then you slowly add. First you heat it using the Bunsen burner and then you slowly add the insoluble base. नहीं And नहीं, then no, you it's stir it oh, and acha then acha. keep adding a bit more and then you, isn't it And like then you that? filter? Yeah, and then you सबर filter. सबर 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 सबर, ठीक है। Because नहीं okay, नहीं नहीं, because पहले I एक्सेस में wrote आप, it. पहले एक्सेस में रिएक्टेंट डाल दें, पहले एक्सेस में रिएक्टेंट डाल दें, Yeah, ठीक है। because I wrote it like you first take it and then you filter to remove the excess of the reactant नहीं and नहीं, then you heat फिल्टर कहाँ it. से, नहीं नहीं, फिल्टर करने से पहले फिल्टर करना नहीं, पड़ेगा। फिल्टर से सबर पहले कर हीट रहे होता है। सब लोग, पैनिक क्रिएट हो जाता है आप लोगों में। देखें, Okay, okay. आसान तरीका है बिल्कुल। इमेजिन द रिएक्शन हैपनिंग इन योर हेड ना बेटा। देखें, आपने क्या करना है, आपने पिपेट आउट अभी तक सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड किया है, अभी हीट करके क्या आपको हासिल होगा? नहीं वो नहीं, गर्म हो after you जाएगा ना, add रिएक्शन। the क्योंकि वो acid. कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो उसको गर्म कर लें ताकि वो ज्यादा नहीं जल्दी नहीं, रिएक्ट हो जाए। ड्यूरिंग द रिएक्शन गरम करें आप, ठीक है, पहले से ही नहीं गरम करें। मतलब क्या पकौड़े बनाने हैं आपको, तेल पहले गरम कर रहे हैं तो हम लोगों को जो है यहाँ पे रिएक्शन कराना है ना, रिएक्शन एक्सेस डाल दें, फिर आप हीटिंग करते रहें तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। आपके लिए भी मुनासिब है और सबके लिए मुनासिब है। शदीद Okay, गर्म then I चीज wrote के it अंदर wrong in my notes. हाँ, अच्छा। शदीद गर्म चीज के अंदर Same. आपने एक्सेस में कोई रिएक्टेंट डाल दिया, तो एक तो आपने रिएक्टेंट एक्सेस में डाला, यानी कि सारे का सारा एसिड रिएक्ट कर जाएगा। दूसरा, अगर खुदा ना खास्ता वो सल्फ्यूरिक एसिड आप पे स्पिल हो गया, तो शदीद गर्म भी था और कोरोसिव भी था, तो दो नुकसान हो गए आपके साथ, ठीक है। सही है। तो इस वजह से आप क्या करें कि कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के बाद पहले आप डाल दें ऐड। सर मुझे अभी तक समझ में नहीं आया why it's concentrated. So what if cobalt 2 oxide is a weak रिएक्टिंग वेरी स्लोली। व्हाई इज इट इफ इट इज रिएक्टिंग वेरी स्लोली? because it's oh, okay, never mind. Sorry. क्वेश्चन भी नहीं I पढ़ते need आप। to also read the question. एड एक्सेस ऑफ कोबाल्ट टू ऑक्साइड। नाउ gently heat the solution until, या ये भी लिख लें, gently heat the solution in a Using Bunsen hot burner. वाटर बाथ। बोलने वाला था मैं तो, बंसन बर्नर भी ठीक है, लेकिन बंसन बर्नर तो बहुत ज्यादा हीट नहीं दे देगा। इतनी ज्यादा हीट देने की जरूरत नहीं है हमें, तो थोड़ा सा भी गर्म कर लेना, 70-80 डिग्रीज तक भी तो रिएक्शन तेज हो रहा है, जितनी तेज आपको चाहिए। नाउ जेंटली हीट द सॉल्यूशन इन हॉट वाटर बाथ until no more reaction takes place, until no more reaction takes place। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई मजीद रिएक्शन नहीं हो रहा, इसमें तो गैस नहीं बन रही, या नहीं बोलना कि एफरवेसेंस, बिल्कुल नहीं बोलना। कैसे पता चलेगा कि आ, आपका जो रिएक्शन है वो हो गया कंप्लीट? Until like No, they I was gonna say effervescence because would it not produce effervescence when neutralizing? until the metal until the cobalt oxide is no longer dissolving and it is in excess. एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, सही है। तो एफरवेसेंस बिल्कुल नहीं होगी बेटा, क्योंकि सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा ना, एसिड बेस है। अभी अभी बात हुई, एफरवेसेंस कब होती है? जब खाली मेटल यूज करो तो हाइड्रोजन गैस की एफरवेसेंस होती है, और अगर कार्बोनेट यूज करो तो कार्बन डाइऑक्साइड की। बट इफ यू यूज अ बेस, एफरवेसेंस डज नॉट हैपन, देयर इज नो एफरवेसेंस, नेवर, ठीक है। Okay, okay. तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि until no more reaction takes place, we know reaction has stopped,
Reaction is complete. Sir, it doesn't matter if you use hot water bath or Bunsen burner, एक ही बात है ना? जी जी, दोनों दोनों सही है। हॉट वाटर बाथ, बंसन बर्नर और हीटिंग पैन सब चलेगा। ठीक है। We know reaction is complete when no more cobalt 2 sulfate is Forms? नहीं, cobalt Is no longer dissolving है। solid is dissolved full stop। ठीक है, यहाँ तक हो Wait, गया। so then if it's not dissolving, तो like the excess is the insoluble जी, thing जो excess हमें is the निकालना है। cobalt oxide जो हमें निकाल के फेंक देना है। वही कोबाल्ट ऑक्साइड, फिर फिल्ट्रेशन होगी ना? जी हाँ जी। Wait, okay. So whatever's left is the cobalt 2 sulfate. वो हम नहीं फेंक देंगे because whatever is in the beaker नहीं is नहीं the नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। Whatever is left Okay, is sir. not the cobalt 2 sulfate। Is फुल स्टॉप the लगाओ यहाँ cobalt पे। oxide? इट्स द cobalt 2 oxide Wait, what's in लेफ्ट the है ना। beaker is the cobalt 2 oxide, right? कहाँ है व्हाइट पेज अच्छा में? wait, no. Sir, pull his drawings, man. Pull the white page out. ये बीकर है, इसके अंदर आपके Okay. पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। Okay. आप इसको हीट कर रहे हो कब? जब Which आपने is soluble. एक्सेस में एक बहुत बड़े लंप में क्या डाल दिया? कोबाल्ट 2 Oxide? ऑक्साइड डाला था, ठीक है, सही है। Yeah. अच्छा, रिएक्शन होने की वजह से क्या फॉर्म हो गया? कोबाल्ट 2 Sulfate. सल्फेट फॉर्म हो गया, सही है। Hmm. लेकिन वो क्या है? पानी में डिसॉल्व। वही आपको चाहिए। दिस इज वांटेड, So we're gonna add a lot of cobalt oxide. which is Yeah. called excess. Why don't you just use the word excess? A Yeah. lot को छोड़ो, excess, we are gonna use excess Yes, cobalt yes. 2 oxide। कोबाल्ट 2 ऑक्साइड जब हमने एक्सेस में डाल दिया तो हमारे पास रिएक्शन के एंड So, में oh, okay, H2 wait. Since it's an excess, that means like जब like it won't react anymore once H2SO4 is complete. So then जो रहता है वो फेंक देंगे cobalt 2 oxide because then we only have cobalt 2 sulfate in the beaker. with water। जी, With water, yeah, of course. Okay. Okay, I get it. दिस इज व्हाट आई वांट यू टू इमेजिन बेटा। मतलब ये इमेजिन Hmm. नहीं करेंगे ना, नहीं हो पाएगा ये सवाल। तो इसको यहाँ रहने देते हैं डायग्राम को, क्योंकि मुझे लग रहा है वापस आना पड़ जाएगा। Nice. कंप्लीट व्हेन नो मोर Hopefully not. सॉलिड इज डिसॉल्विंग, ठीक है। द रिएक्शन इज कंप्लीट जब कोई मजीद सॉलिड डिसॉल्व नहीं हो रहा। अब आप क्या करेंगे नाउ? Wait. What does that mean by cobalt 2 sulfate is dissolving? वो मैंने कब कब बोला? dissolve हो रहा था? वैसे तो हम कोबाल्ट 2 ऑक्साइड सल्फेट की बात कर। ही डिसॉल्व हो रहा था, लेकिन मैंने कब बोला कोबाल्ट 2 सल्फेट? मैंने बोला नो मोर सॉलिड। सॉलिड हमारा ऑक्साइड ही है ना? हाँ, जो चीज नहीं डिसॉल्व हो रही थी वो सॉलिड था, क्योंकि वो एक्सेस में है। क्योंकि वो बट एक्सेस में वो तो कम ही नहीं सॉल्युबल हुआ। ही नहीं था कभी। हाँ वो तो तो बस रिएक्ट कर रहा था। हम जी, जो टर्मिनोलॉजी है ना वो सिखा रहा हूँ आपको, आपको यही टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूँ। व्हाइट सॉलिड इसीलिए बोला और कोबाल्ट ऑक्साइड इसीलिए नहीं बोला क्योंकि कोबाल्ट ऑक्साइड डिसॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन आप रिएक्शन के दौरान ये देखेंगी कि जो ये रिएक्टेंट है ये ओवर टाइम साइज में कैसा हो रहा है? छोटा। छोटा। तो जब हम्म ये साइज में छोटा हो गया, बाद में जब ये साइज में छोटा हो गया, मजीद छोटा नहीं हो रहा, तो रिएक्शन कंप्लीट है। इसको कहते हैं व्हेन नो मोर सॉलिड इज डिसॉल्विंग, आसान जबान में, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ये दिखता है। ऑब्जर्वेशन में क्या दिखता है कि पहले सॉलिड था, फिर सॉलिड कम हो गया, इसका मतलब सॉलिड डिसॉल्व हुआ। हाँ, रिएक्शन के थ्रू नया प्रोडक्ट बना के डिसॉल्व हुआ, लेकिन क्या हुआ? डिसॉल्व हुआ। ओके तो यू यूज द ओके वर्ड नो मोर सॉलिड इज। सॉलिड। ये एक मतलब आपकी वो वाली है,
वो वाली है आपकी वो वाली है। एक लाइन होती है ना जो कि मतलब हर दफा यूज हो सकती है, वो वाली लाइन है यहाँ पे, ठीक है। पता नहीं ओके उसको क्या कहते थे, जेनेरिक नहीं टिपिकल, ऐसा ही कुछ। तो आप हमेशा जब भी मेथड वन यूज करते हो ना, प्रिपेयरिंग सॉल्युबल रिएक्टेंट विद एन इनसॉल्युबल सॉल्युबल सॉल्ट विद एन जनरल। इनसॉल्युबल रिएक्टेंट, तो जो जनरल स्टेटमेंट है बिल्कुल, वो आप ये दे सकते हो कि रिएक्शन कब स्टॉप होता है, जब मजीद सॉलिड डिसॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। जब मजीद सॉलिड ओके। डिसॉल्व नहीं हो रहा तो फिर नेक्स्ट स्टेप आप ये करते हो, फिल्टर टू रिमूव एक्सेस जो हमारा बेस है, एंड उसको ट्रांसफर इट इन द evaporating dish नहीं, evaporating, heat the solution. No, don't heat it. Dry the solution. no, No, नहीं, heat transfer it it in until the till and अरसा let it like in the evaporating basin and heat let the it solution till evaporate. till crystallization. फिल्टर Heat हो the चुका है sol आप लोगों को जाने से? G. Filter to remove excess of reactant, and then for Hmm. purification, heat the solution till crystallization. Leave it ये evaporate. Yeah. फिल्टर द, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन एक मिनट रुक जाए। फिल्टर द सॉल्यूशन टू रिमूव एक्सेस ऑफ इनसॉल्युबल रिएक्टेंट, ठीक है। Sir, can I use 25 centimeter cube like every single time, यस, एवरी सिंगल टाइम। नाउ कलेक्ट or 50 ml? द I said फिल्ट्रेट। 50 cm cube once, and Miss Eileen said that's a lot, but it's fine. हाँ, मतलब पिपेट नहीं होता ना आपके 50 पास। ml होता है ना, 50 खबर, ml. अरे तो सेंटीमीटर क्यूब एमएल एक ही बात है, पिपेट आउट नहीं 1 कर सकते। cm cube is 1 ml. जी, हाँ, अच्छा। सुन रहे हैं, मेरी बात तो सुन लिया करें। पिपेट Sorry. अच्छा सर। 50 ml का नहीं बना हुआ है इस दुनिया में ना, तो पिपेट 50 ml का होगा। लैब्स के अंदर 25 का सबसे ज्यादा होता है, दैट इज व्हाई 25 सेंटीमीटर क्यूब इज इनफ, ठीक है। Okay. नाउ कलेक्ट द फिल्ट्रेट एंड gently heat it Huh? on a Why are we heating the filtrate? तो evaporate हो जाए ना बंसन में। But filtrate तो हम फेंक रहे थे. बेटा, रेजिड्यू फेंकते सॉल्युबल हैं, चीज रेजिड्यू फेंकते हैं फेंकते जो हैं, रेसिड्यू होता है। Oh, अच्छा, रेजिड्यू फेंकते हैं। sorry. Gently heat it on a Bunsen burner till point of crystallization, ठीक है। क्योंकि 6 मार्क्स का है तो ये भी एक्सप्लेन कर दो कि पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कब अचीव होता है। दिस इज अचीव्ड, So sir, if they said didn't say hydrated, they said dry crystals, so we said till dryness. They said hydrated, so we're going to do point of crystallization, right? yeah, we can do evaporation till And dryness then then। wait, you do it till the point of crystallization, and then you filter it, and then collect that residue and dry it between a few sheets of filter paper, right? जी मरियम, Or लेकिन पहले no? जैना ने जो पूछा था उसका जवाब तो देने थे मुझे। जैना, आपने क्या Huh? पूछा था? I was saying if it wasn't written hydrated, it was just written dry crystals, so we could have said that evaporate till dryness, अगर and not वो ये बोलते, we shouldn't अगर have अगर mentioned like yeah. अगर वो मेंशन नहीं करते कि हाइड्रेटेड, वो बोलते प्योर ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ कोबाल्ट टू सल्फेट, तो आप एवेपोरेशन टिल ड्राइनेस कर सकते थे, ठीक है। फुल स्टॉप And we लगा, didn't mention no like point of crystallization anything. नहीं फिर आप ड्राई एवेपोरेशन टिल ड्राइनेस करते तो क्रिस्टलाइजेशन करते ही नहीं ना, एवेपोरेशन टिल ठीक। ड्राइनेस करते डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कोबाल्ट टू नाइट्रेट बनाना होता तो हमेशा क्रिस्टलाइजेशन करनी पड़ती, क्योंकि नाइट्रेट्स आर प्रोन टू हीटिंग, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाती है, कार्बोनेट्स की भी हम्म। थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाती है। तो इस वजह से ज्यादा मुनासिब ये है कि आप पहले आइडेंटिफाई करो कि आपकी जो सॉल्ट है क्या वो हीट स्टेबल है। जैसे कि सल्फेट्स आर हीट स्टेबल, ठीक है, समझ आ गई, थर्मली स्टेबल होता है सल्फेट्स, तो एवापोरेशन टिल ड्राइनेस हो भी सकती है वहां पे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बट अगर आपके पास नाइट्रेट्स होंगे देन यू कैन नेवर evaporate till dryness because all nitrates they decompose on heating। Even carbonates? नाइट्रेट अलग चीज होती है, कार्बोनेट अलग चीज होती है जी। ऑल Yeah. कार्बोनेट्स एक्सेप्ट सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट आर प्रोन टू हीटिंग जी।
सोडियम कार्बोनेट अगर बनाना हो तो वो चलो आप वो कर सकते हो कि सोडियम कार्बोनेट बनाना था तो देयरफॉर आप जो है इवेपोरेशन ड्राइनेस कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा बाकी सब। अब आ जाते हैं मरियम आपके बात पे। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तक लेके जाएंगे, फिर उसके बाद आपने कहा उसको कूल डाउन कर देंगे। बिल्कुल कूल डाउन क्यों करेंगे? ताकि मोर क्रिस्टल्स बन जाएं। जब मोर क्रिस्टल्स बन जाएंगे फिर आप उनको फिल्टर करेंगे। बिल्कुल, और फिर फिल्टर करके आप उनके रेजिड्यू को कलेक्ट करेंगे, क्योंकि फिल्टर की हुई चीज जो है वही सॉल्ट है। अब वो आप ड्राई बिटवीन फ्यू शीट्स ऑफ फिल्टर पेपर कर देंगे। जब वो ड्राई बिटवीन फ्यू शीट्स ऑफ फिल्टर पेपर कर देंगे तो आपका प्योर ड्राई हाइड्रेटेड कोबाल्ट टू सल्फेट के क्रिस्टल्स हासिल हो चुके होंगे। फुल स्टॉप। बिल्कुल यही सब अभी मैं लिखूंगा। ठीक है। ओके ओके। ऑलराइट। तो आपने लिखना है दिस पॉइंट इज अचीव्ड, लेकिन क्योंकि 6 मार्क्स है तो मैं हर चीज एक्सप्लेन कर करके लिख रहा हूँ। दिस पॉइंट इज अचीव्ड व्हेन precipitates ppts of cobalt 2 sulfate are observed. Full stop. After crystallization, allow the solution to cool. Not gonna lie, paper 6 seems so easy, but I don't know how I get low marks in it. Because of the लिटरली जब things मैं you guys say to me, तो मैं यही सोच रहा होता हूँ कि मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। मतलब ऐसा लग रहा होता है जैसे कि you guys are so out of practice. So it's because not practicing enough and opening the marking scheme too many times. आप marking scheme बहुत खोलते हो, सही है, तो marking scheme कम खोलो। पहले सवाल पूरा सॉल्व करो एंड देन genuinely marking scheme बाद में खोलो। ठीक है। तो डोंट लुक फॉर आंसर्स, लुक फॉर रीजंस। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन करना है और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लॉजिक के साथ करने होते हैं। तो आप लोगों के जो आंसर्स अभी भी मुझे पता चल रहे होते हैं उससे मुझे आइडिया हो रहा होता है कि द लॉजिक्स आर नॉट करेक्ट, क्योंकि आप लोग इमेजिन ही नहीं कर रहे केमिस्ट्री को। आप सोचा रहे हो कि मैंने हर जो चीज जिसका रट्टा लगाया हुआ है ना वो मुझे अचानक याद आ जाए। नहीं, बट वेयर इज द लॉजिक, वेयर इज द कॉन्सेप्ट? तो वो चीज आपकी अभी भी मिसिंग है, जब भी लो मार्क्स आते हैं। ठीक है। द क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इजी एंड रिपेटिटिव। केमिस्ट्री बहुत आसान है और बहुत ज्यादा रिपेटिटिव है, क्योंकि एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल, ये सब एक पेज का काम है और उसी के ऊपर जितनी चीजें उन्हीं की प्रॉपर्टीज तो पढ़ रहे होते हैं, कुछ नया तो नहीं पढ़ रहे होते। तो आप लोग कर सकते हैं, अभी भी बहुत टाइम है करने को, बट ट्राई यूजिंग लॉजिक, और वो आएगी प्रैक्टिस करने से। कितने आपने पास पेपर इंडिविजुअली कंप्लीट कर लिए और कितनी दफा कर लिए, ये सवाल तो ये होता है। तो खुद से अपने आप को एनालाइज करें, कहाँ पे खड़े हैं, कितने पास पेपर कर लिए, कितने की रिक्वायरमेंट है, और फिर आप लोग मजीद मेहनत करें। सही है। वरना बेटा नंबर आना मुश्किल है। आखिरी महीना शुरू होगा, अब तो 20 दिन है। टेंशन हो रही है मुझे खुद आप लोगों के लिए। तो विद दीज कॉन्सेप्ट्स देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ होप। मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि ऑफ गेटिंग एन ए स्टार यू हैव टू वर्क हार्डर। सही है। एंड यू हैव टू यूज मोर लॉजिक। मोमेंट ऑफ ट्रूथ था ये काइंड ऑफ। सही है। तो दिस इज द रीजन फॉर गेटिंग लो मार्क्स। मूविंग ऑन। अलाउ द तुम डरा सॉल्यूशन टू रहे हैं कूल सर। डाउन। मैं डरा रहा हूँ? रियलिटी चेक। Yeah. हाँ, बहुत ज्यादा डरा रही है आपने। या तो बेटा, तो मैं क्या करूँ अब? मुझे खुद मैं डर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज आई केप्ट सेइंग के लॉजिक यूज करें, लॉजिक यूज करें, लॉजिक यूज करें, कॉन्सेप्ट यूज करें, इस तरह से करें, बट स्टिल देयर इज लैक। सो व्हाई इज देयर एनी लैकिंग? तो इट्स प्रोबेबली बिकॉज पास्ट पेपर्स आर नॉट बीइंग प्रैक्टिस्ड इनफ। मे बी। सही है। रट्टे बहुत ज्यादा मारे जा रहे हैं। मे बी। मार्किंग स्कीम बहुत दफा खोली जा रही है। मे बी। तो कोई रीजन है जो कि आप गलत कर रहे हैं। हालांकि आपको बोला है कि 1 घंटे में एक सवाल करो, लेकिन करो तो खुद से, नोट से रीजन निकालो, मार्किंग स्कीम जो खोलते हो। गलत बात है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउ द सॉल्यूशन टू कूल डाउन सो दैट more crystals form now, या फिर ऐसे बोलें, once solution
returns to room temperature filter it and collect the residue. Stop. Dry the residue between few sheets of filter paper to obtain pure dry crystals of cobalt to सल्फेट Sir, फुल aren't स्टॉप they technically ठीक है not अच्छा dry? यहाँ पर कुछ I mean, मजीद aren't they बातें भी आप technically लोगों not को pure? modify कर why are they not pure Because they're hydrated. तो हाइड्रेटेड कोबाल्ट टू सल्फेट कह दो ना उसको तो प्योर ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ Oh, okay. प्योर ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ Pure dry hydrated crystals. हाइड्रेटेड कोबाल्ट टू Oh, yeah, okay. That makes sense because that's what the line in the क्वेश्चन question आस्क says. Yeah, make pure dry क्वेश्चन crystals of आस्क hydrated cobalt 2 sulfate. यही तो हमारा एम था ठीक है मजीद बात आपको मैं ये बता रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को जब आपने कूल डाउन कर दिया सो दैट मोर क्रिस्टल्स फॉर्म इसके बाद आप मजीद एक काम कर सकते हो मजीद एक काम क्या होता है जो कर सकते हो क्या किसी को पता है कोई गैस है कि क्रिस्टलाइजेशन के अंदर एक और फेमस काम क्या है इफ यू हैव टाइम एंड यू Dry between few sheets of filter paper. नहीं आपने जब सॉल्यूशन के अंदर आपने सॉल्यूशन को मजीद कूल डाउन करके छोड़ दिया उसके बाद आप सॉल्यूशन को पोर कर Pour सकते off any extra liquid? हो ऑन अ ड्राइंग Decant? Like, what's it called? Decant? ऑन अ ड्राइंग ट्रे पोर नहीं मेरी बात सुन लेना पोर द सॉल्यूशन इन अ ड्राइंग ट्रे I've never heard of this to before. allow all water to evaporate behind crystals of cobalt to sulfate with very little water स्टॉप ठीक है अच्छा जब ऐसा बोलेंगे तो वंस सॉल्यूशन रिटर्न्स टू रूम टेम्परेचर वाली बात नहीं करेंगे ठीक है वंस सॉल्यूशन रिटर्न्स टू रूम टेम्परेचर वाली बात नहीं करेंगे बस डायरेक्टली इसके बाद जो है आप क्या बात करेंगे आप बोलेंगे फिल्टर द सॉल्यूशन बल्कि देन से स्टार्ट करेंगे आप सेंटेंस देन फिल्टर द सॉल्यूशन या नाउ से स्टार्ट कर लें नाउ filter the solution और उसके आगे की कहानी सारी लिखी हुई है filter the solution and collect the residue filter the solution and collect the residue try the residue between few sheets of filter paper filter तक यहाँ से उठा के between few sheets of
Sir, you are lagging a bit. So okay, the paper is about to end. Filter paper. To obtain pure dry crystals of hydrated cobalt 2 सल्फेट स्टॉक। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी आंसर कंप्लीट हो तो गया है, लेकिन मजीद आप एक बात कर सकते हैं 6 मार्क्स कंफर्म करने के लिए। टू मेक द रिएक्शन सेफ, या फिर ऐसे नहीं, फॉर सेफ्टी लिखना है, फॉर सेफ्टी यूज, या फिर वेयर ग्लव्स एंड गॉगल्स while handling sulfuric acid, full stop। कोई मसला परेशानी दुख तकलीफ? Nice, sir. नहीं सर। यहाँ तक सब समझ आ गया? I erase Yeah. this, this is जी not necessary now। ठीक है, तो with that our P6 is completed of 2023। इंशाल्लाह ताला we'll do more P6s as we progress। आप लोगों को मजीद मेहनत करनी है बेटा। जस्ट आप लोगों को खुद देखें कि कैसे मजीद मेहनत होगी आप लोगों से, तो इंशाल्लाह ताला उससे देखते हैं कि कोई फायदा होता है या नहीं होता। इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Okay, thank you Hafiz. so much, sir. Allah